हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो दैट अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में सीएस प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन हुआ था एंड सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिक एकेडमी हैव क्लियर्ड देयर सीएस प्रोफेशनल इन द न्यू सिलेबस आल्सो इन द ओल्ड सिलेबस आल्सो। देयर वर सो मेनी रैंक्स आल्सो। एग्जामिनेशन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक किया है, वेदर इन टर्म्स ऑफ ईएसजी ले लो, ड्राफ्टिंग, सीएमएडीडी, सीआरआई, आईबीसी, सीएफएसएल, सारे के सारे। So I'm here to talk about those students, those who have cleared their CMADD या CRI या IBC, जो मेरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। तो वो सब्जेक्ट्स में जिन जिन लोगों ने एग्जाम्शंस क्रैक किया है, सो आई इनवाइटेड देम। आई वांटेड टू हैव अ जनरल Q&A डिस्कशन टाइप, जो कि जो अपकमिंग एग्जाम है जून 25 वाला, जून 2024, सॉरी 25 वाला। तो जो एग्जाम अभी देने वाले स्टूडेंट्स हैं, दे कैन वॉच दिस वीडियो, दिल गेट एन नंबर ऑफ इनपुट्स, इनसाइट कि इफेक्टिव स्टडी कैसे करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सो फॉर देम, मतलब फॉर यू गाइस, आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, जिसके वजह से इन लोगों ने क्या क्या किया था, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एज ए सजेशंस, which will definitely help you out in your upcoming exams, right? Yes, so I'll be asking all of you for your first of all introduction. Yes, Navneet sir, aap. My name Yeah, is my Navneet Sen. Okay. I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. Recently, I have appeared for CS Professional First Group in December 24. I have cleared the exam in first go and I have secured 60 in CMADD, 51 in ESG, 49 in drafting, and 50 in the open book subject CSR, governance. Okay, so you got exemption in group 1 में. CMADD. ओके ग्रेट। मतलब टोटल मार्क्स कितने थे सीएमएडीडी के आपके? मेरे 207, टू नहीं, हंड्रेड एंड सीएमएडीडी के, सॉरी, सीएमएडीडी के मार्क्स। CMADD का 60। ओके परफेक्ट। एंड अभी क्या कर रहे हो बेटा आप? अभी मैं सर सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और साइड बाय साइड आर्टिकलशिप। ओके परफेक्ट। यस, कमलिका मैम. Yes, myself Kamalika Mandal. I am from Kolkata. I am a company qualified company secretary. I got exemption in ESG, drafting, IBC. Overall, my marks is 385, and I am right now I'm doing. I will be doing training. परफेक्ट गुड। सीएमएडीडी में आपके कितने मार्क्स थे कमलिका मैम? 50. ओके 50 मार्क्स थे एंड यू गॉट एग्जाम्शन इन हाँ, रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, राइट? हाँ. ओके गुड। यस, वेंकटेश नायक सर. Hello, sir. Good evening. यस वेंकटेश. I'm Venkatesh. Currently, I'm working as a CS management in at SJS Group. I take the coaching from both group from Unique Academy, and I got exemption in ESG and CRVI, uh, and I took the marathon from the CS executive from Unique Academy only, and passed the exam at first attempt. Unique Academy has helped me a lot in CS executive and also CS professional in respect of education and also the course and also quality content, etc. ओके, थैंक यू सो मच. यस, हर्षिता मैम. Hello, sir. So basically, my name is Harshita and I'm from Gurgaon. And recently, I've also cleared my CS professional exams. Both grew up in the first attempt only. And just because of Unique Academy, it was possible. And actually, I'm a total Unique student. I have basically passed all my 3 levels by studying from Unique only. And I've secured exemption in 3 subjects. In ESG, I secured 65 marks, and CSR 65, and CRVR 61. So yeah, that's all about me. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. यस, तेजस्विनी कौशल जी. Hello, I'm Tejaswini Kaushal and I'm from Delhi. I'm currently doing my law as well. So I gave my first group of CS professional in June 2024 and in December 24 I gave the second group. I cleared both the groups in the first attempt. And I had exemptions in the first group for all the subjects apart from CMDD, where I got 60, where I got 54. And all the rest, I believe I got 60 plus. Don't remember the exact marks. In the second group, CRVI I had 60 marks, and SNCF also had exemption. In IBC, I had about 56 marks. ओके ग्रेट. यस, निकिता डांगी जी. यस. निकिता, आई गेस आप म्यूट हो अभी भी. हेलो.
निकिता आपका आई गेस Sir, कनेक्शन, am I audible? हाँ ऑडिबल नाउ, यस कंटिन्यू। Okay. So I'm Nikita Rangi. मैंने अपने बोथ ग्रुप नंबर 24 में दिए थे. So I secure all India rank 5. I have exemption in 4 subject out of 7. ES got 68 marks and CMD 67, CRI 61, 16 marks got 57. परफेक्ट परफेक्ट। एंड एग्जीक्यूटिव में भी सर मेरा 7 आउट ऑफ 8 में एग्जामिशन था, वो भी मैंने यूनिवर्सिटी किया था, लेकिन मेरा पूरा सीएसई यूनिक अकेडमी से हुआ। परफेक्ट परफेक्ट। यस मोनिका खत्री जी। हेलो। मोनिका आपका ऑडियो क्लियर नहीं है बेटा, योर ऑडियो इज नॉट एट ऑल क्लियर। आप प्लीज माइक पास में ले पाएंगे? हेलो सर। Yes. No, 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 no. Sorry, sorry. No, extremely sorry. Monica, extremely sorry. It's not working. Maybe आपके साइड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. If you can join from any other device, that would be okay. Till the time I'll be asking few questions to others. ठीक है, एक काम करते हैं, आपसे मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपने जो रैंक्स लाए हैं या एग्जाम्पशंस लाए हैं 60+ इन सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो आई वांट द रेसिपी फॉर योर सक्सेस कि आपने कैसे प्लान किया था एज फार एज द थ्योरी सब्जेक्ट इज कंसर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मेजरली क्लास तो स्टार्ट हो जाता है बट प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर आफ्टर द क्लास कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या वन डे बिफोर एग्जाम क्या करना चाहिए। तो आई वांटेड द इनपुट फ्रॉम यू साइड। यस मनु, आपसे शुरुआत करते हैं, आपका एक इंट्रोडक्शन रहेगा। यस Yes, sir. Myself, Mansi Chaudhary. I stays in Dombivli, and that is in Mumbai. So I am also a pure unique student. And like I need to share something like I got exemption in executive also because of Shubham sir, Shubham Abad sir and Shubham Modi sir, like in JIGL and company law and SLSM also. And now also I have secured the ESG 61 the exemption, and also I got in IBC 61. The experience was like मैंने IBC का पेपर लिखा था, मुझे फॉर श्योर था कि मैं फेल होने वाली हूँ। ये IBC का पेपर बहुत गंदा था। और फिर मुझे सिर्फ आपकी याद आ रही थी, आपकी आवाज ऐसे कान में गूंज रही थी कि नहीं नहीं आप मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करो, आप पास हो जाओगे। एंड आपने जैसे कि बोला था अपने हाथ में रिजल्ट नहीं रहता है, कि वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, मेहनत पूरा करो। तो आपकी एंड वन मोर थिंग, लाइक मुझे CRBI में भी 55 मिले हैं, तो बिकॉज आपने जैसे पूरा आप पूरे मॉडल से पढ़ाते हो, लाइक आपको कुछ भी शॉर्ट समरी नोट्स नहीं है, एंड में आप बोलते हो कि आपके जो समरी नोट्स है वो रीड करने का, लाइक डे बिफोर एग्जाम्स। तो मैंने सेम टिप्स एंड ट्रिक्स आपका फॉलो किया। मैंने ग्रुप 2 क्लियर किया है। ग्रुप 1 में ESG में एग्जाम्शन है, एंड आई एम रिमेनिंग विद ओनली 3 सब्जेक्ट लाइक CMADD, ड्राफ्टिंग एंड CSR। तो मैंने सिर्फ एक ही किया है, मैंने किसी के लेक्चर्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपने जो कहा मैंने वो किया। लाइक सब लोग बोल रहे थे ये देखो, लाइक अभी जैसे कि टेलीग्राम पे अपन है, लाइक व्हाट्सएप इंस्टा पे बहुत सारे नोट्स सब बहुत कुछ आता है ना। आई वाज लाइक नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सर के साथ ही मतलब कनेक्ट रहना है। फिर ड्राफ्टिंग के लिए शुभम सर, अपने मोदी सर जो भी सब देते थे वो सब मैंने किया। एंड लकीली आई स्कोर, लाइक मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा जिस दिन मुझे IBC में मैंने देखा, आई वाज लाइक 61। लाइक मतलब बहुत शौक था कि बहुत लोग को 60 भी नहीं मिला IBC में। राइट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली यू एंड यू। एंड ग्रुप 2 तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से क्लियर किया, टू बी फ्रैंक। लाइक मैं कुछ प्रमोशन या कुछ नहीं कर रही हूँ, बट दैट्स इट कि मतलब आपके नोट्स, आप जैसे 10:30 के बाद भी लेक्चर्स लेते थे, 12-1 बजे तक भी, लाइक आपका बीच में आपका ऑपरेशन भी हो गया था, बट स्टिल यू आर वर्किंग फॉर अस करके। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं जस्ट ये होप कर दूं कि अभी मेरे 3 सब्जेक्ट है वो भी निकल जाए, एंड सोन टू बी CS मानसी। श्योरली श्योरली। थैंक यू। यस यस यस, थैंक थैंक यू। यू सो मच। मैं मेरा जो क्वेश्चन था इन जनरल सबसे पूछना चाहूंगा। यस आई स्टार्टिंग विद कमलिका। यस आई वांटेड कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, व्हाट आर द सजेशन व्हिच यू हैव फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। यस Yes, sir. This was my second attempt. जून में फ्यू मार्क्स के लिए रह गया था दोनों ग्रुप। सो मैंने सबसे पहले कॉपी मंगाया, देन आई चेक कि मेरी गलती कहाँ हुई। जस्ट मैंने DD के पेपर में मैंने चेक किया कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में गलती हो रही थी। एंड नेक्स्ट मॉड्यूल 2 में CRI में थोड़ा मार्क्स के लिए रह गया था, जहाँ पर 100% कवरेज नहीं हुआ था मेरा पेपर।
सो ये तो फॉर श्योर था कि दिसंबर वाले एग्जाम में मेरा सारा पेपर में 100% कवरेज करना है, नो मैटर व्हाट, कि जैसे तैसे कंप्लीट करना है। एंड डीडी का जो मेरा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा था, वो मैंने स्कैनर सॉल्व किया, प्लस जहाँ से क्वेश्चंस मिले मेरे को वहां से सॉल्व किए। मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मैंने मैराथॉन्स देखा, रिवीजन देखा, मैंने अपना कॉन्सेप्ट सारा क्लैरिफाई किया, सब चीज कि कहाँ से जो चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जहां से भी वो चीज को इजी हो जाए। एंड मैंने एग्जाम में 100% कंप्लीट किया पेपर। एंड एग्जाम की 1-2 घंटा पहले हम कुछ टच नहीं करते थे, लाइक एग्जाम हॉल में देखते थे पीपल आर रिवाइजिंग, तो थोड़ा सा पैनिक होता था कि हम कुछ नहीं कर रहे, बट स्टिल वो ना काम माइंड होने के लिए आपको एग्जाम के पहले एकदम फ्रेश, आपको अपने में फेथ होना चाहिए कि हाँ हम जो पढ़े हैं वो मेरा दिमाग में रहेगा, याद आ जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर घुसने के बाद। तो एग्जाम के पहले हम कुछ छूते नहीं थे, जस्ट कि हाँ कुछ अगर ऐसे प्रोविजन, जस्ट सेक्शन या समथिंग, कुछ ऐसे रिवाइज अचानक से याद आया कि इसका सेक्शन क्या था, तो वो जस्ट देखते थे बस। बाकी आई यूज टू अवॉइड कि एग्जाम के पहले कुछ ना ये करे। Okay, perfect. Yes, Monica. नहीं, अभी भी मे बी आपका ऑडियो इशू है, यू आर नॉट गेटिंग इट। यस हर्षिता, कंटिन्यू। मोनिका, मोनिका एक्सट्रीमली सॉरी, बट सीरियसली देयर इज जेन्युइन प्रॉब्लम। वो आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है या माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आई गेस। हर्षिता, यस कंटिन्यू। हर्षिता, यस सर। यस। सर तो बेसिकली स्टार्टिंग से मतलब मेरे को याद है आपने एक लेक्चर में आपने काफी बार बोला भी था कि बैकलॉग्स को कभी करना ही नहीं है। सो दे आर लाइक द बिगेस्ट कर्स, ये वाला बात थी। तो मैंने उस चीज को तो बहुत ध्यान में रखा स्टार्टिंग से कि बैकलॉग्स तो होने नहीं चाहिए। बाय चांस बिकॉज मैं रेगुलर स्टूडेंट भी हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैवलिंग आवर्स के बाद पढ़ना। बट देन स्टिल वो आपकी बात दिमाग में रहती थी कि नहीं यार बैकलॉग तो कंप्लीट करना है जो भी है। तो तभी के तभी इंस्टेंट पढ़ना पूरी मतलब एक तो विल पावर भी थ्रू आउट रखनी पड़ती है, बिकॉज एट सम पॉइंट मेरे को भी काफी प्रॉब्लम हो गया था कि नहीं हो पा रहा है एंड ऑल। पर स्टिल मतलब आप सब टीचर्स की वजह से मैंने थ्रू आउट यूनिक से ही पढ़ा है मैंने, और कोई सोर्स वगैरह कुछ नहीं। एंड देन कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली बात भी आ गई थी। सो एग्जाम के एंड तक मतलब पूरा आप ही के मैराथॉन्स, लेक्चर्स, अपने खुद के नोट्स भी बनाए थे एंड ऑल दैट, तो पूरा उसी पे ही थ्रू आउट फोकस था। सो एंड में भी मतलब जैसे उन्होंने भी बोला कमालिका जी ने भी कि एग्जाम के एक दो आवर्स पहले थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश ही रखना चाहिए। सो मैंने खुद वही स्ट्रैटेजी ही अपनाई थी कि मेरे को कुछ ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना, मतलब पूरा एंड तक थोड़ा अपना दिमाग सही करके जाना है एंड ऑल। सो मेरे को तो बहुत ही एक दो चीजें मैंने ध्यान में रखा था थ्रू आउट की, कंसिस्टेंसी रखनी है, बैकलॉग्स तो करना ही नहीं है चाहे कुछ भी, एंड देन पेपर हमेशा 100% लिख के आना चाहे कुछ भी है। सो मेरे सारे पेपर मैंने पूरे 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करे थे, आई रिमेम्बर। बस एक आईबी से मैंने आई गेस 4 या 5 मार्क्स का छोड़ा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सारे पेपर 100 मार्क्स के करे थे। एंड कॉन्फिडेंस तो कभी कभी पेपर को देख के भी लूज हो जाता था कि यार ये तो आता ही नहीं है, तो बन ही नहीं रहा, क्या करे। बट देन स्टिल आपने बोला था कि कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, कोई बात नहीं, जितना आता है वो अच्छे से होना चाहिए। सो यही कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ी, एंड बिकॉज ऑफ दैट भाई हो गया क्लियर मेरा। सो थैंक्स टू योर टीचर्स। परफेक्ट, परफेक्ट। यस निकिता डांगी जी। तो मैंने आपकी 2-3 चीजों को फॉलो किया था। आपने जो बोला था कि डेली पे जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ते जाओ, और कीवर्ड्स पे बहुत फोकस किया था सर। आपने सारे कीवर्ड्स वैसे क्लास में याद करवा दिए थे। वो सीएमएडीडी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल था कि जो मतलब पूछा गया था वही कीवर्ड्स में बिल्कुल हम लोगों ने लिखा था। और उसके बाद सर रिविजन्स मैंने किए थे, और टेस्ट सीरीज भी जो यूनिक की इंटरनली हो गई थी, कहीं से परचेज तो नहीं करनी पड़ी थी, बट उससे बहुत हेल्प हो गई थी। मतलब जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट थे वो हो गए थे साथ में। और वो टेस्ट की जो चेकिंग आई थी तो उससे मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स निकालनी थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा था। और एंड देन रिवीजन करके पेपर 100 मार्क्स का, जो इन लोगों ने कहा कि पेपर तो 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है सारे पेपर्स में, मेरा भी एक आईबीसी छूट गया था सर, तो उसमें मुझे लगा था कि शायद ये मेरा रह जाएगा, नहीं निकलेगा। बट जब मैंने अपनी कॉपी चेक करी तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि 55 मार्क्स कैसे आ गए। वो भी सब कीवर्ड की वजह से हुआ था सर। आपने आईबीसी में, मुझे याद है आपने बोला था कि 100 में से 60 मार्क्स तो आप लोग को खुद ही लिखना पड़ेगा, 40 का आप सिर्फ ढूंढ पाओगे बुक्स में।
तो वो पॉइंट मैं हमेशा लिख के चली थी ओपन बुक में कि वो खुद से ही लिखना है, होगा नहीं ओपन बुक में। तो उसमें टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट एट लास्ट मैनेज हो गया था। तो मुझे लगा नहीं था सर, मुझे लग रहा था कि मेरा ड्राफ्टिंग और आईबीसी रह जाएगा, बट जब मैंने देखा कि रैंक आ गई तो बहुत ज्यादा मुझे लगा कि टीचर्स ने गाइड किया था, उसी की वजह से हो पाया है। तो थैंक्स टू यू सर। Always welcome. Thank you so much. Yes, Tejaswini. हाय, सो आई थिंक मोस्टली तो सबने सब कुछ कवर कर ही दिया। 100 मार्क्स का लिखो, कॉन्फिडेंस मेंटेन करो, ये सारी चीजें मेरे पे भी अप्लाई थी। ग्रुप 2 मेरा बहुत ही बेकार गया था। आई ऑनेस्टली वाज एक्सपेक्टिंग ये तो नहीं निकल रहा है, बट इट जस्ट हैपेंड दैट वो निकल गया, थैंकफुली। एनीवेज, दो मेजर चीजें जो मैंने सीखी अपने ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में वाज फर्स्टली कि मॉड्यूल तो पढ़ना पड़ेगा, फुल पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, मतलब थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ो। चाहे सब कुछ ना आता हो, बट हर टॉपिक के लिए एटलीस्ट इतना आता हो कि तुम लिख पाओ फॉर 5 मार्क्स, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर 5 मार्क्स। अब यूनिवर्सिटी पेपर्स में यहाँ पे लाइक अ लॉट ऑफ राइट अ लॉट, लाइक 20-20 पन्ने भरते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी पेपर्स अलग होते हैं, बट यहाँ पे मतलब क्वालिटी कंटेंट लिखना, छोटा लिखना है। यू हैव टू राइट मैक्सिमम 2 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं लिखना। सो नो इनफ टू फिल इतना एंड क्वालिटी कंटेंट दैट यू कैन राइट। ऑल्सो बीइंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ लॉ, मेरी आदत थी कि आई जस्ट बाय डिफॉल्ट एंडेड अप ऑल लर्निंग ऑल सेक्शंस, ऑल रेगुलेशंस जो भी था। फिर रेगुलेशंस आई तो मैं सारे रेगुलेशन वाइज सब कुछ लर्न कर लिया, सेक्शन सारे लर्न कर लिए। So I did this a lot, but I've seen a lot of people who did not do this also score well. So I personally recommend learn, case names and regulation numbers, section numbers, because it gives a good impression. Because अगर बाकी का conclusion part या application part सही नहीं भी हुआ, primary law अगर सही लिखा है, so you'll end up scoring some marks. Then another thing is कि examination is not simply about learning, it's also about presenting. तो अगर तुमने सब कुछ पढ़ भी रखा है लेकिन वहां नहीं लिख पाए, it won't end up making you, reach anywhere. So जब भी पढ़ रहे हो, maybe revising, have a structure in your mind कि इस तरीके से I'll have to present when the actual question comes. So read and study according to an exam perspective. So I think these are the major things that I want to do. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये तेजस्विनी, आपका क्या स्कोर था? मतलब आपके कौन से एग्जाम्शन थे? स्पेसिफिकली एग्जाम्शन कौन से थे आपके दिसंबर 24 में? 24 में SMCF में I had 65, in CRBI I had 60, and IBC में I had 56. Getting 2 exemption out of 3 and you're still saying कि भाई मेरा second group I वाला was not expecting, because group 1 it went really really good. I felt the group 1 marking के was really exemptions bad. आपके कौन से थे group 1 में? ESG में I think I had 68. In what are the other subjects? CSR also I had an exemption. I think it was 64 or 65. In CMADD I had 54. वहाँ पे मुझे I think कुछ moderation के marks भी नहीं दिए थे. I don't know why, but तो रह गया. And I think the drafting में भी I think I had a 62 or a 63. Perfect. But I attempted really good papers. इसमें I got similar marks, but the papers went really bad. I don't know why. Okay. Yes, Venkatesh, how was your experience? And majorly I need some input ki how you prepared for your exemption subject. Yes, sir. My case is very different, sir. Due to financial issue, I can't take the coaching for the CS executive and watch the marathon from Unique Academy only. The marathon of the CS executive was very detailed in the YouTube, so that I was cleared CS executive in first attempt, and also scored the exemption in MCQ papers, both 3 papers in old syllabus, and also the SBEC subject. So totally 4 subject I scored exemption in CS executive due to Unique Academy only. And also in CS professional, for that gratitude, I also took the coaching from the CS professional from the new syllabus from the Unique Academy only. For that gratification, I was very thank you for Unique Academy. Also, I joined lately as at November 2024. You have given me opportunity to join lately by paying the money due to financial issue. Then with the in June 24, I have given the module 1, and also I working as a part time other job, so that only one group I gave and cleared. And ESG I have scored exemption due to discipline and self study. Consistently I have did self study. At least 3 revisions should be done. I have go through with the scanners which has shared at the group, Unique Academy group, and also the test series it was conducted by the CS Academy was very helpful. And
many things which has been I was can't recall. There are many. The notes of the CS Academy was very detailed, and it was a very amended notes. So it was very helpful. And for module 2, I was very lately I studied. Uh, After that, I completed the syllabus by November and completed the revision, three revision in the and given the module 2 at December, and also scored exemption at CRVI, and 55 marks in the other SMCF. Great, great, great. No doubt it's not a joke at all, because working plus study ये बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है. Because when it comes to normal student, they are already into studies और वो 24/7 एक ही काम करते हैं. So that is quite easy as compared to your job, no doubt. मतलब hats off, आपने इतना मैनेज किया. You said you completed your syllabus in the month of November and you gave December का एग्जाम. Seriously यार, मतलब नो डाउट तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है. सैल्यूट टू यू. यस नवनीत सर. सर मैंने एग्जीक्यूटिव यूनिक के मैराथन से किया था. उसमें भी मेरे को टैक्स में और एसबीसी में एग्जेम्पशन था. ये प्रोफेशनल मैंने आपके एलडीआर और खुद के सेल्फ नोट्स और मॉड्यूल के रिवीजन से वो बहुत हेल्पफुल रहा. एक सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी ईएसजी में, वो भी आखिरी आखिरी में थोड़ा सेटल डाउन हो गया. उसमें भी सेल्फ नोट्स मेरे काम आए. ईएसजी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और ड्राफ्टिंग में मैंने ड्राफ्ट प्रैक्टिस किया जैसे शुभम सर ने बताया था. उस सब में बहुत हेल्प मिला. परफेक्ट. यस यस कंटिन्यू. और बाकी आपके एग्जाम्पशंस कौन से थे नवनीत? सर मेरा सीएमएडीडी में एग्जाम्शन था ओके 60. ओके. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू वाज विल बी कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसके लिए क्लास के साथ में स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए. मतलब आफ्टर द क्लास में तो व्हाट वी डू, वी कवर एंटायर मॉड्यूल लाइन बाय लाइन सारी चीजें. तो आफ्टर द मॉड्यूल व्हाट यू डिड, क्या करना चाहिए जो अभी अपकमिंग बच्चे उनके पास एक अराउंड दे हैव अप्रैल, दे हैव मई, अराउंड 2 महीने बाद उनका एग्जाम है. सो व्हाट आर योर एडवाइसेस टू देम. अभी उन्होंने लास्ट मोमेंट में 2-2.5 महीने में क्या क्या करना चाहिए. यस स्टार्टिंग फ्रॉम निकिता. सर मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ. मैं तो क्लास के बाद क्या होता था कि जैसे ही क्लास खत्म होती थी तो इवनिंग में सारे क्लास के जो मैं पहले मॉड्यूल से एक बार रीड करके फिर अपने सेल्फ नोट्स बना लेती थी कि मुझे कहाँ से लर्निंग करनी है, कहाँ से रिवीजन करना है. तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको रिवाइज करती थी और उससे याद करती थी लर्निंग पार्ट के लिए. और उसके बाद अगर मुझे लगता था कि कोई टॉपिक ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं उसके हेडर्स का वो शॉर्ट नोट बनाती थी पॉइंटर्स में लिखे कि कौन कौन से पॉइंट्स मुझे याद रख लिए तो मुझे बार बार मॉड्यूल रेफर नहीं करनी पड़े. तो ये मैंने किया था थ्योरी सब्जेक्ट में. और सीएमएडीडी के लिए सर सीएमएडीडी में क्या बहुत सारा सेम कंटेंट है, तो उसके लिए मैंने पॉइंटर्स में पढ़ाई की थी. मतलब उसके मैंने पॉइंटर्स बना लिए थे कि किस टॉपिक में कौन कौन से हेडर्स मुझे याद रखने हैं. ओके और अंदर का कंटेंट तो आपने समझा ही दिया था क्लासेस में, तो वो ऑलरेडी याद हो गया था. तो बस पॉइंटर्स में पढ़ाई की थी मैंने सर उसमें. ओके ओके. हर्षिता व्हाट अबाउट यू? सर पर्सनली मैंने तो एग्जीक्यूटिव से ही सीख लिया था अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स कि जैसे ही क्लास एंड होती है भाई तभी रीड करके अपने नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि बाद में नहीं होता, हम बोलते रहते प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, वो कभी काम में नहीं आती वो चीज. सो मैंने हमेशा से अपने नोट्स ही रखे थे. एंड एक चीज वो भी आ जाती है कि एंड में अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज तो डिफरेंट ही होती है, तो वो एक हमेशा हमें प्रिविलेज देता ही है अगर अपनी राइटिंग के नोट्स हैं तो मैंने तो वो चीज करा था. एंड जैसे ही क्लास एंड हुआ तभी के तभी पूरा मॉड्यूल रीड करना, वो तो करते ही हैं. हाईलाइट करना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड अगर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो रहे हैं देन पार्ट्स पार्ट्स में करना, छोड़ना नहीं चीजों को. ये वाली चीजें मैंने सीखी थी. एंड देन एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको तो पहले कर लो, एंड देन जो नहीं समझ आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है स्टिल उसको थोड़ा बहुत तो करना है ही, ताकि तुम कुछ ना कुछ उसमें भी लिख के आ सको. छोड़ना तो नहीं था, तो ये कभी ऑप्शन था ही नहीं. सो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी रही थी थ्रू आउट, अपने खुद के नोट्स बना के एंड जो आप लोगों ने गाइडेंस दी थी उनके अकॉर्डिंग ही बना के एंड देन पढ़ती थी मैं. परफेक्ट परफेक्ट. यस कमलिका. यस जैसे क्लास होता था उसके 2 दिन बाद मॉड्यूल पढ़ते थे. मॉड्यूल पढ़ के मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा रहता था, मॉड्यूल पढ़ के समझ लेते थे एंड मार्क करते थे कीवर्ड्स पॉइंट. एंड उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन हम खुद नोट्स बनाने का कोशिश करते हैं, कितना याद रह रहा है, ब्रेन कितना रिटेन कर पा रहा है.
फिर खुद का सारा नोट्स लाइक ऑल सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स बनाया। मेरा नोट्स ना कलरफुल रहता था क्योंकि मेरे को पिक्चर थिंग्स बहुत याद रहता है, तो कलर से इसलिए एग्जाम में बहुत हेल्प भी किया। जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आया ना तो ऐसा आंख बंद करके याद किए तो इस कलर में लिखा हुआ था, ये पिक्चर था। तो वो सब मेरे को बहुत हेल्प किया थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में। और एग्जाम के पहले तो ब्रेन मैपिंग नोट्स लाइक बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता था, इवन 2 टाइम भी रिवाइज हो जाता था एक दिन पहले। तो ऐसा था। परफेक्ट परफेक्ट। और जो बच्चे जो मेजरली डाउट्स आता है कि यार 3 घंटे पेपर खत्म नहीं होता है, बहुत लेंदी होता है, तो ऐसे जो डाउट्स आते हैं, इज इट मतलब व्हाट इज द सिनेरियो, पेपर खत्म होता है या नहीं होता है 3 घंटे में? आई कैन अंडरस्टैंड ओपन बुक तो बहुत वास्ट होता है, सब लोग गाली मारते हैं कि ओपन बुक सर पॉसिबल ही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम आस्किंग अबाउट नॉर्मल सब्जेक्ट लाइक टीडी हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, सीआरबीआई हो गया मेजरली, तो क्या वो कंप्लीट होते हैं आराम से विद इन 3 आवर्स? यस सर, हो जाते हैं हाँ हो जाते, बट सर, कभी आराम कभी से अगर होते हैं। सर आई रिमेम्बर जून में पीएसजी बहुत लेंदी आया था, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी, हद से ज्यादा। और वो पहला पेपर था जो मैं प्रोफेशनल के लिए अटेम्प्ट करी थी, मैं रो दी थी क्योंकि बहुत ही लेंदी था। बट बाकी सब्जेक्ट्स काफी डिसेंट थे इस बार तो। जो दिसंबर 2024 के आए थे वो सब ही कंप्लीट हो सकते थे बहुत इजीली टाइमलाइन में। इवन आई फेल्ट आईबीसी वाज आल्सो नॉट दैट लेंदी फॉर मी, बिकॉज मैं कुछ 10 मिनट पहले करके पूरा बैठ गई थी पेपर। Maybe it was just me. Saw a lot of people still writing, but I don't know. But CSR also was lengthy enough to keep up the whole time. So I believe पर ये it's all are in our mind like कि same person like जून में as I said कि मिस किया था मैंने कुछ मार्क्स 10 15 मार्क्स, एंड सेम पर्सन दिसंबर में 100% अटेंड कर गया। बिकॉज आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आई हैव टू अटेंड। एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले आपको माइंडसेट करना है, जो हो जैसे हो, हाथ पेन हो जो भी हो, मेरे को लिखना है। तो इट्स लाइक कि टाइम के साथ आधा घंटा में इतना एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कर लेना है। तो वो होना चाहिए कि जल्दी हैंड राइटिंग स्पीड भी टेस्ट सीरीज दे के हो जाती है वो इंसान का, कि 10 15 दिन पहले ही आप अपना हाथ को वैसे प्रैक्टिस कराओ कि मेरे को 3 घंटा बैठना है। और इवनली हम स्टॉप वॉच लेके बैठते थे कि 3 घंटा एग्जैक्ट, कि एग्जाम हॉल में मेरे को इसी टाइम में बैठना है 3 घंटा, नो 1 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो वो चीज करते थे। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तब जाके, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता था, हम एक्स्ट्रा 15 मिनट और लेते थे क्वेश्चन को समझने के लिए कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े, नहीं तो गड़बड़ लिख दी तो फिर कट करके वापस लिखना विल बी लाइक अ डिफिकल्ट थिंग। तो वो था। यस यस यस। और स्पेसिफिकली सर मैं तो सर मेरे साथ तो अ, मेरे यस यस, कंटिन्यू सर कंटिन्यू। मैं तो 15 मिनट्स जो था ना, मैं उसका बहुत यूटिलाइज किया था। लाइक 15 मिनट्स में मैं पहले देखती थी कि 60 मार्क्स में मुझे कौन सा अच्छे से आता है। लाइक आई वॉज मेकिंग श्योर कि पास तो होना है ये पेपर में। लाइक 15 मिनट्स तो लाइक पीपल वेर लाइक ऐसे ब्लैंक होते थे, तो मैं क्या करती थी, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो मैं उसको स्किप कर देती थी। सो आई वॉज मार्किंग कि कौन से इजी क्वेश्चन है एंड कौन से आई एम स्कोरिंग, मतलब मुझे फुल 100% आता है। सो मैंने टाइम स्लॉट ऐसा किया था कि जो फर्स्ट 2 आवर्स है उसमें जो 60 मार्क्स मुझे परफेक्टली आता है, आई वॉज राइटिंग दैट। एंड जो 40 मार्क्स है, जो एंड वाला पार्ट है, लाइक जो 1 आवर है, तो उसमें आई वॉज गिविंग माई 100% कि उसमें तो मुझे पूरा पेपर लिखना है। तो अगर क्वेश्चंस अगर ऐसा मतलब बोलते हैं डिफिकल्ट है या फिर हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे, तो मैं उसके लिए 1 आवर देती थी। एंड बट स्टार्टिंग के लिए जो 60 मार्क्स है उसके लिए मैं अपना फुल कि लाइक मुझे इसमें तो एटलीस्ट 55 58 तो उसमें आ ही रहा है। सो आई वॉज प्लानिंग इन दिस वे। परफेक्ट परफेक्ट। यस नवनीत सर, या आप? और पेपर वो 3 आवर तो बहुत क्रूशल रहता है। उसमें 15 मिनट्स तो रीड करके और जो जो पेपर में आ रहा है मतलब शॉर्ट शॉर्ट में उसके बगल में मैं लिख लेता था, ताकि मैं ओके, अटेम्प्ट करते ऑन द समय क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। वो की पॉइंट ना भूलूं। वो वो एक चीज मेरे को बहुत हेल्प किया। और बाद में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। आपके एलडीआर सर बहुत हेल्पफुल थे। वो बहुत जल्दी रिकॉल कर देते थे, एकदम पूरा कंटेंट थ्रू आउट कर देते थे। वो एलडीआर आपके बहुत बेस्ट थे। परफेक्ट परफेक्ट। यस वेंकटेश। Yes, sir. I also made the self note from the revision main lecture. While doing the main lectures only, I did the self note, and also the LDR notes of you also very helpful during the last 1 month revision. I did a pre-revision so that it will be very fastly I can You go. you did 1 month में 3 रिवीजन? Yes, sir.
सीरियसली मतलब हाउ यू मेड योर एंटायर डे का शेड्यूल, कैन आई गेट द इनसाइट्स? मतलब 12 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो टेंटेटिवली, somebody means everybody will be doing 10-12 घंटा ऑन एन एवरेज स्टडी, राइट? तो हाउ डू यू प्लान योर डे? कैन यू टेक योर माइक थोड़ा बहुत स्लाइटली नियर बाय? या Yes, sir. In a day, when I will be morning person. I will be wake up early in the early morning at a 5 o'clock. 5 o'clock. When 5 o'clock to 7 o'clock, I will be do the one subject revision. Thereafter, I will be take other subject like that. 2 hours, 4 subject will be covered. In the entire day, I will be studied around 10 to 12 hours by 15 minutes each break during two section. Like that, I did the revision in the last 1 month. perfect, And perfect. also, due to LDR notes also very helpful in the last revision. And I was given one mock revision, mock exam, that practical one, in the last 10 days. After that, I did the final revision for the exam. And then in the new syllabus, the paper was very lengthy, so that it was to be make the utilization of full 15 minutes. So that I did plan to write optional paper, optional questions. Because of time management, I plan to write the which one I have to write in the optional questions. Thereafter, I can with the initially only I started to write with the time. One question, some minutes, like that. Like Okay. that only I completed. So that I did the 100 marks attempt. And also IBC case law book also very helpful for me during the IBC exam. I was very nervous with the IBC question. This 24 December 24. It was very lengthy and also tough. So I wish that case law book and also very helpful. Okay. And that much. Thank you. Perfect, perfect. So to sum up, I need 3 key words from you guys कि अगर जो अभी एग्जाम दे रहा है to plan their success या rank या exemption whatever, what are the 3 most important thing which students should keep in their mind? Starting from Navneet, yes. सर फर्स्ट, जिस दिन पेपर है उस दिन तो मतलब ज्यादा टेंशन लेके नहीं जाना है। और जैसे अभी 2 मंथ जैसे उनके पास है, 2 मंथ 3 मंथ, तो उसमें आप एलडीआर रेफर करो। फिर मॉड्यूल मत आप रेफर करो अगर आपने नहीं किया है तो। एलडीआर से कीप ऑन रिवाइजिंग वैसा। और मैं अगर सेल्फ नोट्स हैं कुछ तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और यही 3 चीज। Okay, perfect. Yes, Kamlika. So firstly, I would say कि 100% coverage करना है syllabus का, मतलब पूरा overall, and paper full attempt करना है, and exam के पहले again tension नहीं लेना है, calmly जाना है. Perfect, perfect. Nikita. सर अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंसी, क्योंकि सर एक बार अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो जो बैकलॉग होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते कभी भी, एंड एंड तक खत्म नहीं हो पाते हैं वो। और उसके बाद है रिविजन्स, मतलब 3 to 4 रिवीजन तो होनी ही चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट है उसका तो 5 हो जाने चाहिए। और उसके बाद 100% कवरेज करना है सिलेबस का, कि कुछ भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल को रेफर नहीं करते हैं, डायरेक्ट फैकल्टी के नोट से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद उनको पता ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन आया है तो ये है कहाँ। I वो agree. बहुत बड़ी एक गलती होती है बच्चों की। क्या है, वो आजकल थोड़ा पैटर्न हो गया है कि एग्जीक्यूटिव तक को ठीक है, बच्चे बोलता है सर मैं सिर्फ मैराथन करूँ पास हाँ, हो जाएगा क्या? बच्चा बोलता है मैंने मैंने क्लास नहीं किया है सर, मैं ये रीजन है वो रीजन है, सिर्फ मैं मैराथन कर लूँ या सिर्फ रिवीजन कर लूँ या समरी बुक दे दो हम उतना ही पढ़ लेंगे। मतलब आजकल नहीं है, सर, सेंटर पे पता नहीं क्यों मार्केट का ट्रेंड, हाँ, वो गलती एग्जीक्यूटिव तक है वो। बट बच्चे को लगता है कि एग्जीक्यूटिव पास हो मतलब प्रोफेशनल भी ऐसे ही हो जाएगा। बट उनको वो नहीं पता है कि भाई मॉडल मैंडेटरी है। मतलब मॉडल के बिना मुझे नहीं लगता कि एग्जाम हम अपीयर कर सकते हैं। मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट टू अपीयर फॉर द एग्जाम आई थिंक मॉडल इज मस्ट। करेक्ट? यस सर। यस, यस। मनु। सर मेरे लिए तो लाइक मैंने कुछ, जैसे सब लोग ने सेल्फ नोट्स बनाए थे, मैंने कुछ नहीं बनाए। टू बी फ्रैंक आई वाज आल्सो वर्किंग। मैंने 8 मंथ्स मेरा इंटर्नशिप हो चुके हैं, तो मुझे भी लास्ट 20 नवंबर को छुट्टी मिला था। एंड उसके बाद मेरा लॉ का एग्जाम्स भी चल रहे थे,
सो लॉ के एग्जाम्स 6 दिसंबर तक थे। तो मेरा लेक्चर्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट स्टिल आई वाज सीइंग योर लेक्चर सैटरडे संडे। तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, बट आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप मॉड्यूल के साइड में अपने शॉर्ट में नोट्स बना के देते हो हमें। तो मैंने वही मेरे समरी नोट्स सोचे, लाइक आप जो नोट्स देते थे आई वाज लाइक कि वही समरी नोट्स है हमारे लिए। एंड देन मैंने क्या किया, लेक्चर्स पूरे कंप्लीट होने के बाद आपके मैराथन है जो लास्ट अटेम्प्ट के लिए, जो यूट्यूब पे है, एंड उसमें भी फुल कवर है, तो लाइक कुछ भी उसमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं है। तो वो मैं रिवीजन मतलब मॉड्यूल प्लस वो, तो मैं एक दिन पूरा मॉड्यूल पढ़ने का, फिर वो आपके लेक्चर्स देखने का, मतलब मॉडल भी कवर हो जाता था, एंड जो शॉर्ट शॉर्ट वाला पार्ट है वो भी दिमाग में रह जाता था। एंड आफ्टर ऑल समरी नोट्स। तो मेरा की इश्यूज मतलब मेरा जो माइंड में था कि जो सर कहते हैं वही करना है। मैंने ना टेस्ट पेपर सॉल्व किए, ना मैंने कुछ सॉल्व किया। यस, उसका नेटवर्क कट हो गया। बट सच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो विथ हर, कि वो ज्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई बिना इसके भी पास हो सकते हैं। चलो, वेरी गुड। थैंक यू सो मच गाइस, मतलब आपके इनसाइट्स बहुत हेल्पफुल थे। एंड आई गेस मनु इज स्टिल देयर वंस अगेन, राइट? हाँ, यस मनु, कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने ना टेस्ट पेपर सॉल्व किया ना कुछ सॉल्व किया। मैंने पूरा का पूरा मॉडल किया। लाइक आपने आपने बोला था कि जितना होता है उतना करो। लाइक छुट्टी नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने बहुत रो रो के छुट्टी ली थी। लाइक 2025 को मुझे एंड में छुट्टी मिली। लाइक मुंबई में आपको पता है ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं आपके जो मैराथन है वो डाउनलोड किया था यूट्यूब पे, एंड मैं वो ट्रेन में देखती थी। लाइक जितना होता था वो देखती थी। घर पे आने के बाद आपके एलडीआर नोट है वो रीड करती थी। एंड आई एनी हाउ मैनेज टू क्लियर माई ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 में भी ईएसजी के, जैसे कि बहुत लोग को ईएसजी में डाउट लाइक बहुत डिफिकल्ट है। एंड सोमिल सर ने आई थिंक यही अटेम्प्ट से ईएसजी स्टार्ट किया है पढ़ाना, लाइक ही वाज एक्सपर्ट इन टैक्स। तो वैसे ही वो ईएसजी भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। लाइक सर ने पार्ट बी और पार्ट सी इतना अच्छे से कवर किया है। लाइक मैंने ऑलमोस्ट मेरे जो यूट्यूब पे लोगों की मूवीज होती है, मेरे यूट्यूब पे पूरे यूनिक एकेडमी के नोट्स है। लाइक अभी तक है, मैं अभी भी देखती हूँ ना कि लाइक मेरे पास मॉड्यूल क्योंकि अभी तक आपके लेक्चर्स है कि लाइक। और मुझे जो भी फ्रेंड्स पूछते कि तूने कैसे मैनेज किया, मैं सिर्फ बोलती जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो यूनिक एकेडमी, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। सो मेरा सिर्फ इतना है कि मॉड्यूल रेफर करो, जो सर ने साइड में लिखा है वो लिखो, एंड वो पढ़ते जाओ। एंड अगर रिवीजन मतलब मुझे ना खुद सेल्फ स्टडी करने में बहुत बोलते ना कंटाला आता है। इतने दिन के बाद अपन ट्रैवल करते, फिर काम करते, फिर अचानक से 10-12 घंटा तो नहीं बैठ सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करती थी, मैराथन स्टार्ट कर देती थी। फिर मतलब जैसे कि आप लोग तो मस्ती भी करते हो एंड पढ़ाते भी हो, तो हमारा मतलब 2 in 1 पूरा पैक हो जाता था, तो पढ़ाई भी होता था एंड फिर मस्ती भी हो जाता था। तो ऐसे ही आराम से मैं तो 13-13 14-14 घंटे बैठी हूँ। एंड एग्जाम के दिन तो मैं सिर्फ 1 घंटा सोती थी। लाइक मुझे तो लाइक पूरा पूरा पढ़ाई होता ही नहीं था, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। दोनों ग्रुप दिया था मैंने, छुट्टी बहुत कम थी, तो लाइक पूरा तो कवर मतलब रिवीजन तो होता ही नहीं था एग्जाम के पहले। सो 1-2 घंटा सो के नेक्स्ट डे मैंने पेपर दिया है। आपके लेक्चर्स नोट देख के ही जस्ट आई गॉट क्लियर, दैट्स इट। मेरा सिर्फ इतना है कि जो क्लास में सर बोलते हैं वो करो, जितने नोट्स दिए हैं वो करो, एक्स्ट्रा मतलब टू बी फ्रैंक जिसको होता है वो बनाओ सेल्फ नोट्स, बट जिसको जेन्युइनली नहीं होता है, सर के नोट्स, सर की आवाज, सर के लेक्चर, दैट्स इट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने प्रोफेसर पे फेथ रखो। लाइक ही व्हाट ही इज सेइंग, मतलब वो जो कहता है वो भगवान है अपने लिए, सीएस के लिए तो वो भगवान है, अपने मॉम डैड से भी पहले सर है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो डाउट। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, मतलब आप आए, आपने कीमती समय निकाला, एंड यू गेव वॉट एवर योर इनपुट्स। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स। फिर भी अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, अभी वी आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ, विल बी अपलोडिंग। सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स या फिर कुछ आपने जो जो ये सेशन से सीखा है, आई विल सजेस्ट टू पॉइंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ एनी थिंग नीडेड फ्रॉम आवर साइड विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आप Thank you, थैंक sir. यू सर। जो भी आपका बीट Thank योर you. Thank you so Thank much. you, sir. या फिर जो इंटर्नशिप में है या फिर जो जॉब के लिए जा रहे हैं, वॉट एवर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मतलब ऐसे ही धूम मचाते रहो, और मिलते हैं जल्द। एज मतलब मैं भी मेंबर, आप भी मेंबर, अभी काम करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे। सी यू देयर, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, बाय Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.